Good morning students. In the previous video we have discussed about the different chemical properties of acids. In this video I will discuss some more terms about the acid. The first thing is that what do all acids have in common? So we have seen earlier that all acids when they react with metal, for an example when zinc react with HCl, it produce जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. सिमिलरली व्हेन एनी अदर मेटल्स रिएक्ट विद एनी एसिड इट प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव सॉल्ट. ठीक है, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है. दिस मीन्स दैट ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन इन कॉमन. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट all the acid consists hydrogen in them. It means hydrogen is common to all acid. The first thing. ठीक है. Second thing, it has also observed that the aqueous solution of all acid conduct electricity. It means when we pass electric current through the solution of an acid, the electric current can be easily carried out by the acid. It means the aqueous solution of all acid conduct electricity. So these two things are common in all the acids. ठीक है. We know that the electric current is carried by the ions. So this shows that the aqueous solution of acid contain ion. Now the hydrogen ion, these are called cations. Hydrogen positive ions हैं. Hydrogen cations are present in all acids. It means these hydrogen ions are also responsible for the acidic character of an acid. So these two things are common to all the acid. Now the next thing is that what is the role of water in acidic characteristics of an acid. So acid produce hydrogen ion only in their aqueous solution. It means जब भी hydrogen ion बनेगा they will produce only in the aqueous solution of an acid. ठीक है. So to understand this I will told you about an activity. So for that we have to take 1 gram of sodium chloride NaCl. ठीक है, in a test tube, and then in this test tube we will add some concentrated sulfuric acid. ठीक है, concentrated CONC, concentrated H2SO4. So when we add the concentrated sulfuric acid to NaCl, sodium chloride, so a gas coming out from the कंटेनर और डिलीवरी ट्यूब, अगर आप इस तरह से इसको अरेंज करें तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड टेक सम सोडियम क्लोराइड इन इट. NaCl आपको लेना है. देन यू हैव टू बी फिट अ रबर कॉर्क ओवर इट विथ अ होल, और इस होल में आपको एक डिलीवरी ट्यूब फिट करनी है लाइक दिस. ठीक है. सो यू हैव टू बी रिमूव द कॉर्क. इस कॉर्क को आप रिमूव करेंगे एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कुछ ड्रॉप आप इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे, H2SO4. ठीक है. कंसनट्रेटेड का मतलब होता है द एसिड विच डू नॉट कंटेन वाटर, उसे हम कंसनट्रेटेड कहते हैं. इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे. सो जैसे ही आप ऐड करेंगे इमीडिएटली पुट द कॉर्क अलॉन्ग विद द डिलीवरी ट्यूब. ये डिलीवरी ट्यूब है आपकी. तो यू विल ऑब्जर्व दैट अ गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम द ओपन एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब. यहाँ से एक गैस रिमूव होगा इसमें से. जैसे ही हम इसमें से H2SO4 ऐड करेंगे तो रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से होगा. Na2SO4 बनेगा प्लस HCl. ठीक है. ये जो HCl है, बैलेंस कर लीजिए, इट विल इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ गैस. ठीक है. ये गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा. सो दिस गैस इज कमिंग आउट फ्रॉम द डिलीवरी ट्यूब. सो इन दिस रिएक्शन द HCl एज ए गैस इज इवॉल्व. सो आफ्टर दैट यू हैव टू बी ब्रिंग अ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर. यहाँ पर आपको एक ब्लू लिटमस पेपर लेना है. ठीक है.
बट द लिटमस पेपर शुड बी ड्राई, ये ड्राई होना चाहिए. So you will observe that there will be no change in the color of the litmus paper, since we know that the acid can convert the blue litmus paper into red, but in that case the HCl, it is an acid, but it do not change the color of blue litmus paper into red. This suggests that the gas do not contain water. ये गैस तो है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, but it do not contain water. ठीक है, इसमें वाटर नहीं है. सो ड्यू टू द absence of water the HCl could not change the color of blue litmus paper. ठीक है, तो इसीलिए अगर वाटर होगा तो एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे. इफ़ द वाटर नहीं है एसिड्स में तो वाटर की अब्सेंस की वजह से एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं. तो इसी को चेक करने के लिए नाउ आपको क्या करना है, यू हैव टू बी वेट दिस ब्लू लिटमस पेपर. अब आप इसे क्या कर लीजिए, वेट कर लीजिए, एंड देन ब्रिंग द वेट ब्लू लिटमस पेपर नियर द ओपन एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब. अब आप इस वेट लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को लेके आएंगे. तो यू विल ऑब्जर्व दैट द गैस टर्न द मॉइस्ट और द वेट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. दिस शोज दैट द HCl हैज बिहेव as an acid in the presence of water only, or in other words the acid show acidic behavior only in the presence of water or in the water solution. So overall we can say that the hydrogen ions are produced only in the presence of water, or in other words you can say the separation of hydrogen ion from any acid, or you can say in that case HCl molecule cannot occurs in the absence of water. Means hydrogen ions without absence of water नहीं बन सकते हैं किसी भी एसिड में. सो इन दिस केस अगर हम इसे देखें द रिएक्शन कैन बी रिटन एज फॉलो HCl प्लस H2O. ठीक है, जब हम HCl जो कि एक गैस है इसमें वाटर का यूज करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव आयंस प्लस क्लोराइड आयन. ठीक है, इन दैट केस अब आप सोच रहे होंगे H3O पॉजिटिव क्या है. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस. ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन है बिकॉज रीजन इज दैट द हाइड्रोजन आयन जो हैं they cannot exist alone but they are always present after the combining with water molecule. ये कभी भी जो है सिंगल हाइड्रोजन आयन जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, they do not exist alone. ठीक है, so they will combine with the one molecule of water like this H positive plus H2O and forms H3O positive. This is called hydronium ion. Hydronium ion consists hydrogen positive ion and one molecule of water, and they will form hydronium ion. Thus hydrogen ion must always be shown H प्लस एक्वस. जब भी आप हाइड्रोजन आयन को शो करेंगे तो यू विल राइट इन दिस वे. ठीक है, और H3O पॉजिटिव. ठीक है, इसमें एक्वस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि H3O पॉजिटिव का मीनिंग ही है कि दैट इट कंटेन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस एंड वाटर. बट ओनली इफ़ यू राइट द हाइड्रोजन आयन लाइक दिस तो यू विल यूज द एक्वस वर्ड. दिस सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन आर इन द सॉल्यूशन फॉर्म. क्लियर है? सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. ठीक है, the acids can be classified as strong and weak acid. मीन्स स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की. स्ट्रॉन्ग एसिड्स विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. इट मीन्स द एसिड्स विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज इन दियर एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, उन्हीं को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4,
they all are a strong acid because they are fully ionized in their aqueous solution. Like this is HCl. When we add water in it, so the HCl is completely ionized, मीन्स इसमें जो आयंस हैं वो completely डिसएसोसिएट हो जाएंगे। मीन्स HCl जो है या हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन जो हैं वो completely डिसएसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं HCl में दे विल कम्प्लीटली आयोनाइज। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन बनेंगे H3O पॉजिटिव। सिंस अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन आयन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, दूसरे क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होंगे, बट दीज हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो दे विल इमीडिएटली कंबाइन विद द वाटर। तो इमीडिएटली वाटर से कंबाइन हो जाएंगे और हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, एंड द रेस्ट आर दी क्लोराइड आयन। सिमिलरली HNO3 नाइट्रिक एसिड विल ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा। ठीक है, एंड दीज हाइड्रोजन आयन are immediately combined with the water and produce hydronium ion, and the nitrate ion are the another ions, they are negative. Similarly H2SO4 will also produce hydronium ions in their aqueous solution. ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन बनेंगे, they will immediately combine with the water in the form of hydronium ion and the sulfate ions will be formed. So all acids produce hydronium ion in their aqueous solution, but the strong acids are completely ionized. मतलब जितने भी हाइड्रोजन और दूसरे आयन्स हैं वो completely separate हो जाएंगे। मीन्स एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड will completely ionized in their aqueous solution, so they are called strong acid. The second are weak acid. So weak acids क्या हैं? The acids which are ionized to only a very small extent in their water are called weak acids. It means the acids which are partially ionized in their aqueous solution are called weak acid. ऐसे एसिड जो completely ionized नहीं होते हैं बट partially ionized होते हैं aqueous solution में, तो उन्हें हम weak acids कहते हैं। ठीक है, for an example this is acetic acid। ठीक है, एथेनोइक एसिड है CH3COOH, सो ये भी आयोनाइज होगा। दिस इज ऑल्सो एन एसिड बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज इन दियर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, सो इसमें कुछ हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाएंगे बट रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयन आर रिमेन सेम। सो जो हाइड्रोजन आयन सेपरेट होंगे दे विल इमीडिएटली कंबाइन विद द वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, एंड द अदर आयन्स आर एसिटेट आयन। सिमिलरली H2CO3 that is carbonic acid, it is also a weak acid because it is partially ionized in their aqueous solution and forms hydronium ion and carbonate ions. ठीक है, these acids are not completely ionized like the strong acid, partially ionized होते हैं, तो इन्हें हम जो है weak acids कहते हैं। यहाँ पर एक बात और नोट करने की है that the strong acids have a high conductivity. strong acid में जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। रीजन इज़ दैट द लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि इनमें आयंस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ आयंस बनते हैं, इसीलिए इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। वेरस वीक एसिड्स पार्शियली आयनाइज होते हैं, सो द कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयंस are very less, so they have a low conductivity for the electricity. ठीक है, in their aqueous solution. So on the basis of that we can say that the strong acids are strong electrolytes. तो जो strong acids हैं उनको हम strong electrolytes भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो वीक एसिड्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। ठीक है, इन द स्कूल ऐप यू कैन, ठीक है, उसमें आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होगा तो। ठीक है, सो
आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स क्या है? द कंसंट्रेशन मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। मीन्स किसी एसिड्स में अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, उसी को हम उस एसिड का कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर बात करें कंसंट्रेटेड एसिड की, सो अ कंसंट्रेटेड एसिड हैज़ लिटिल और नो वाटर। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड्स हैं जिनमें या तो बहुत कम वाटर होगा या बिल्कुल भी वाटर नहीं होगा, उन्हें हम कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं। वाइल अ डाइल्यूट एसिड हैज़ मोर वाटर देन द कंसंट्रेटेड एसिड। इट मीन डाइल्यूट एसिड ऐसे होते हैं जिनमें वाटर का कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड एसिड से बहुत ज़्यादा होता है। हाउएवर यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है, अ वीक एसिड रिमेन वीक। वीक एसिड वीक ही रहता है इवन इफ इट इज़ कंसंट्रेटेड, चाहे वो कंसंट्रेटेड हो या ना हो, वीक एसिड हमेशा वीक रहेगा। इट मीन्स किसी वीक एसिड में अगर वाटर नहीं है या बहुत कम वाटर है तो उसे हम कंसंट्रेटेड कहेंगे, बट इट रिमेन वीक, क्योंकि वो वीक ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज इट डिसएसोसिएट्स टू अ स्मॉल एक्सटेंट एंड प्रोड्यूस स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन। क्योंकि वीक एसिड जो हैं, चाहे उनमें वाटर हो या ना हो, तो वो वीक ही रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन उनमें ऑलरेडी कम होता है। सिमिलरली अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिमेन स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे इफ इट इज़ डाइल्यूटेड, बिकॉज इट डिसएसोसिएट्स इन वाटर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। मीन्स कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड चाहे उनमें वाटर हो या ना हो, वो स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे, बिकॉज दे प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इवन व्हेन इट इज़ लेस कंसनट्रेटेड। चाहे वो लेस कंसनट्रेटेड हो या मोर कंसनट्रेटेड हो, उनमें हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। द कंसनट्रेशन कैन बी डिक्रीज बाय डिजॉल्विंग इट इन एक्सेस ऑफ वाटर। अगर आपको कंसनट्रेशन डिक्रीज करना है हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस के किसी भी एसिड में, तो उसमें हम जितना एक्सेस ऑफ वाटर डिजॉल्व करेंगे कंसंट्रेशन उतना डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? You can note down and make notes for the lesson also. Now we will study how we can mix water with an acid. ठीक है, so mixing water with an acid is always a highly exothermic process. जब भी हम वाटर को मिक्स करेंगे किसी भी एसिड्स में, कंसनट्रेटेड एसिड में, तो ये प्रोसेस जो है हाईली एक्जोथर्मिक होती है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस। बहुत ज़्यादा हीट भी इसमें प्रोड्यूस होता है। सो जब भी हम किसी एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो वी फॉलो अ प्रोसेस, ठीक है, जिसे हम डाइल्यूशन कहते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज डिजायरेबल टू ऐड एसिड टू वाटर, क्योंकि सडनली किसी भी एसिड में वाटर को मिक्स करना या वाटर में एसिड को मिक्स करना, दोनों केसेस में जो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक होगी, और उसकी दोनों केसेस में जो भी मिक्सचर बनेगा एसिड और वाटर का, इट विल बी स्प्लैश आउट फ्रॉम द कंटेनर एंड मे कॉज सीवियर बर्न्स। तो जितना भी मिक्सचर बनेगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत हाईली एक्जोथर्मिक होती है, तो सारा का सारा जो मिक्सचर है वो कंटेनर से स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड इट विल कॉज सीवियर बर्न्स। बहुत ज़्यादा बर्न कर सकता है क्लोथ्स में और बॉडी में। सो दिस ग्लास, इसके अलावा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सो द कंटेनर कैन ऑल्सो भी ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग। तो हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो कंटेनर भी जो है ब्रस्ट हो सकता है। देयरफॉर वी हैव टू बी फॉलो अ सिंपल रूल मिक्सिंग वाटर विथ एन एसिड, दैट इज ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ वाटर वी विल ऐड एसिड टू वाटर। जब भी हम वाटर को मिक्स करना चाहते हैं या डाइल्यूशन करना चाहते हैं किसी एसिड का, सो हमेशा ध्यान दिया जाता है
कि वी विल ऐड एसिड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, मीन्स हम वाटर में, दिस इज वाटर, हम वाटर में एसिड ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, एंड विथ कंटिन्यूस स्टीयरिंग, ठीक है, कंटिन्यूस स्टीयरिंग ग्लास रॉड का हम यूज करते हैं और इस रॉड की वजह से की हेल्प से हम कंटिन्यूसली वाटर को स्टीयरिंग मतलब हिलाते रहते हैं और एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन एन एसिड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन क्या है? मिक्सिंग एन एसिड with water result in the decrease in the concentration of hydronium ion per unit volume. This process is called dilution and the acid thus obtained are called dilute acid. So जब भी हम वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं, so by mixing acid in water we decrease the concentration of hydronium ion, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन को डिक्रीज करते हैं और इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड कहते हैं एंड द एसिड विच ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। क्लियर है? सो इन दिस टॉपिक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है, यू कैन कमेंट एंड आस्क द क्वेश्चन। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो I will discuss about the chemical properties of base. Clear? Thank you.